in Lithuania, Holding Productions. Milda, the floor is yours. Thank you. My name is Milda, and Lionel made such a nice introduction. I actually don't have that much to say about Lithuania, but yeah. With a bit sentimental introduction, and this introduction is on behalf of my generation. We grew up in Soviet Union when actually there was not so much film. One of the biggest events that changed our childhood probably to better and happy experience was when in 1985 we cultural house invited to come to watch an Indian film. We didn't know what to expect. We didn't know the Name the few of the films, actually Bollywood films. Bollywood films could be shot in Lithuania. Have you shot here? I saw, there is one person who actually shot a film in Lithuania, and I see you at the back, and he could tell about his experience, but I'm sure that we could have more of films from India. We know a lot about working, probably, I cannot see differences, but probably you have your own particularities, bringing more crew to Lithuania. But I see no reason why Bollywood should avoid coming to Lithuania. We have same thing that Bucharest or Budapest does. So why travel to even further and pay more money? Come to visit us. What was the Irfan Khan thing actually? That was what shoot was that? Irfan Khan. It was a Japanese production, okay. And they are still, the movie is not released yet, but they are very strict about making public announcements, so I'm not entitled to really talk more about that, but it was a Japanese film that was shot at the end of last year. Best season to shoot, and as Irfan also mentioned that it's very hot at that when you are shooting. It's not so hot like here, but we have, actually, you know, with global warming, these 4 seasons, they are changing their boundaries, if I may say so. The best season starts probably like middle of April, when you have like plus 17, sometimes, I don't know how this April will look like, but from April to October, it's really a perfect season to work. Probably for you, but we have people coming from really warm countries to work in winter. It depends what they need. But just winter again. Before we used to have like 3-4 months of winter. Now it's just we have snow for 6 weeks, for 7 weeks, and this is it. So I would say from April to end of October. And October is September, October, very beautiful, colorful trees, and it's really beautiful. Since your winter is been shorter, and you have mentioned that there's an artificial snow kind of thing you have on. What is that actually? Can you explain? This is basically for skiing, made for public skiing, but we have artificial snow arena, which is under the roof, a big building, and it depends again what you need, but for this artificial snow, we don't have it in, let's say, when we have plus 25 outside. We need around 0 degrees to create the snow and to keep it there. My name is Mukesh Bhatt. I am a film producer and also the president of the Film Producers Guild of India. At the moment, I'm shooting in Bucharest. I'm shooting in Romania. A film shoot is going on. And I'm shooting in -20 degrees. So it's, it depends on what kind of scripts you need. I'm making a supernatural film, so I need
the snow and I need that kind of a ambiance to create the magic for a supernatural film. But having said that, you've got 4 seasons. Europe is a beautiful continent, and to be a part of any virgin location like this would be a dream from the government, because there's a famous saying, wherever Bollywood goes, tourists follow. So my humble request to you would be to your government ambassadors here, Mr. Prime Minister was here today, but I've told him that we are the guild, the most active and the most strongest film body. We can facilitate to send our key members to see the locations there. See what you have to offer, put it on a guild site, and that will convert into actual things happening. Or else, this is a beautiful evening, we have met each other, and once we go out, everything will be lost. So I don't want to, I appreciate this initiative taken by you and all of you. I welcome this. And we as filmmakers, we are dream merchants, we sell dreams. And we'd love to come to as many beautiful places. Help us to capture your beauty and show it to the world. Every 5th person walking on this planet is Indian. What can be a better marketing place than Bollywood movies for the tourists to come? Even a fraction of the people who see our movies decide to come to your country, you will have a problem to create an accommodation. So, the only way to take this forward is to give legs to it by inviting important people from the guild who are very active producers. The biggest production companies are guild members. So we facilitate. My CEO is here. I'll tell you a very interesting incident. We shot a lot of films in Mauritius. Till one fine day, I met somebody from Seychelles, and it's a beautiful country, small country, south of the equator, little above Mauritius and Madagascar. And again, I had the same question, where the hell is this place? Seychelles. It's a French colony. And they facilitated us to come. I was the first one to go and shoot there, followed by Mr. Shah Rukh Khan, who's a very popular Bollywood actor. And Mr. Bachchan did the Miss World pageant over there, this company, ABCL. And within a matter of 6 to 7 months, everybody knew about Seychelles. There was hardly a flight a week from Air Seychelles from India to their capital Mahe. Once a week, the flight used to be via Dubai. And when our movies started shooting there, you'll be amazed. There was a daily flight and going packed. So that is the impact of our movies in terms of tourism. So I appreciate what the effort which has gone behind making this beautiful demonstration of your location, but we need to make people come to ground zero, see what it really has to offer, and then when you sit down there, then you will see it converting into action. Thank you. Coming to Lithuania for scouting. Well, honestly, my question would be, it depends on how many people. If we are talking about one day. वाइट होगा क्या इधर? हाँ होगा। ये दोन इकडे दोन पाडी आहे पाडी. थांबा सर थांबा तुम्ही.
बस सर राइट सर राइट में चलो बाइक सर राइटला सर ये हट ना बाबूजी भाई सर लेफ्टला सर कैसे हो अरे उस तरह बोलो सबसे पहले तो इस इवेंट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये अच्छा है कि एक अच्छे तरीके की प्रमोशन है कि हमें भी इस कंट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और जिस तरीके से मतलब आप इंटरनेट देखते हो वो एक अलग चीज़ है। कंप्यूटर पे आपने देख लिया, लोकेशन देख ली आपने, लेकिन जब इंटरेक्शन के थ्रू आप उसका प्रॉपर आदान प्रदान करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी अच्छा लगा कि ये जाना चाहिए, उस कंट्री में शूटिंग होनी चाहिए, मुझे भी ये बहुत अप्रिशिएटिंग लगा। सर आपकी कोई फेवरेट जगह कंट्री? हमारी अभी तक तो यूके ज़्यादा, हमें लंदन अच्छा लगता है बहुत। वैसे तो की कोई खासियत जो आपको बहुत पसंद हो? बहुत फेमिलियर और बड़ा लाइफ में लाइवनेस बहुत लगती है। सर आपके कुछ प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? 5-6 फिल्में हैं जो 1 by 1 बन रही हैं, तैयारी चल रही है और 2016 के अंत तक। अभी रिसेंटली जो है 3-4 फिल्में कंप्लीट हैं, तो उसमें देखते हैं कौन सी पहले आए, लेकिन बाकी 5-6 फिल्में फ्लोर पे हैं। सर यहाँ पे आउटडोर शूट की ऐसी बात चल रही है, कोई अपना आउटडोर शूट का कोई एक एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें? हमेशा पहले आउटडोर शूटिंग में शादी करके आ गया था पहले तो। रेडी सर आपने प्रेजेंटेशन देखा, किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन नज़र आए कि क्या क्या पसंद है? बेसिकली ये बहुत ही वर्जिन लोकेशन है, ऑब्वियसली वी हैव टू शूट देयर बिकॉज नई नई चीज़ें, नए नए देश एक्सप्लोर करना ज़रूरी होता है। यू विल फाइंड अ वेरी गुड, कभी कभी ऐसा होता है आप कहीं पे भी ड्राइव पे चले जाते हो, यू फाइंड न्यू लोकेशन, बट दिस इज़ अ वेरी गुड लोकेशन। और यहाँ पे जाना, मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि मेरी टिकट कराओ, मैं चलता हूँ। एंड इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर द बॉलीवुड, एट द सेम टाइम फॉर दीज गाइज। क्या होता है कि आप एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करो और यू हैव लेस एक्सपेंसेस एट द सेम टाइम, बेटर देन दैट्स व्हाट दे से, बेटर देन अदर कंट्रीज। तो या दैट्स व्हाट आई थिंक। सर आपकी कोई फेवरेट कंट्री जिसमें आप? मेरी फेवरेट कंट्री अब एक तो ये भी होगी है पेरिस। पेरिस की कोई अच्छी चीज़ें जो आपको भाग गई हो? पेरिस का द वाइब इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी सूदिंग एट द सेम टाइम। और या वहाँ रहना और इट्स समथिंग एल्स। वैलेंटाइन डे आ रहा है सर, वैलेंटाइन डे को लेकर क्या क्या प्लानिंग चल रहा है? वैलेंटाइन डे यही है कि बस सिंगल है, कुछ तो वेट कर रहे हैं। कुछ तो कुछ नहीं, मैं अपने दोस्तों की हेल्प कर रहा हूँ, उनको ज्ञान दे रहा हूँ, भाई ये कर लो वो कर लो, ऐसे करते हैं सरप्राइज़, कोई फ्लावर ले जाओ या कोई डब स्मैश बना के दे दो। आपकी कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ असाइनमेंट्स? अभी बातें चल रही हैं, अभी ऐसे ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है, बट जल्दी हो जाएगा, जस्ट कम टू नो सून। थैंक यू सर।
लुथानिया का प्रेजेंटेशन था हाँ जी। कंट्री के बारे में, क्या क्या पसंद है आपको कंट्री को? नहीं, बेस्ट पार्ट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज कंट्री है, बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल पीपल, नाइस एम्बेसी। तो लुकिंग फॉरवर्ड कि हम जल्दी कभी मौका लगे और जाएं वहाँ शूट करें और मज़ा आएगा। सर आपकी कोई फेवरेट कंट्री लोकेशन आउट ऑफ इंडिया? मेरी फेवरेट कंट्री यार यूएस है और यूके। तो मैं यूएस तो नहीं गया बट यूके गया हूँ, बहुत मज़ा आया। और नेक्स्ट मेरा टारगेट यूके है, वो यूएस है, सो लेट्स सी। अच्छा, यूके की कोई पसंदीदा चीज़ या कोई क्लाइमेट या फिर कोई जगह? मुझे क्लाइमेट बहुत अच्छा लगता है वहाँ का यार, बहुत मज़ा आता है। एक प्लेजेंट वेदर है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि कभी भी हल्की सी ड्रिजलिंग होती है जो आपको मतलब चाहिए होता है यार। मतलब आप अगर कहीं बैठे हैं किसी गार्डन में तो आपको वेदर चाहिए, अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो वो बेस्ट है वहाँ का। सर जैसे कि वैलेंटाइन डे आ रहे करीब, वैलेंटाइन डे को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है? ये क्यों पूछ लिया आपने? वैलेंटाइन डे यार मेरा तो सूखा जाने वाला है, मतलब कोई ऐसी कुछ बात है नहीं। सर आपके कुछ प्रोजेक्ट्स बॉलीवुड में? हाँ, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेरे, 2-3 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक फिल्म आ रही है अजरुद्दीन की, उसमें मेरा रोल है नवजोत सिंह सिद्धू का। एंड सेकंड इज़ फुकरे 2 आ रही है बहुत जल्दी, इट्स ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है एंड जल्दी अगस्त में हम शुरू करें शूट। एंड एक नया प्रोजेक्ट है, वो अभी मैंने साइन किया बट आई कांट रिवील राइट नाउ, तो प्राची देसाई के साथ है। सर जैसे कि आप कॉमेडी रोल में जाकर के नजर आए तो अजरुद्दीन में किस तरह रोल में नजर आएंगे? अजरुद्दीन आपको पता ही है नवजोत सिंह सिद्धू जी कैसे हैं, बट जो उनका बचपन अब तक ना बहुत कम लोगों को पता है। वो बहुत ज़्यादा रिजर्व थे, बहुत ज़्यादा शाय थे, तो वो ज़्यादा बोलते नहीं थे। अगर अभी मैं नवजोत सिंह होता और मीडिया उस टाइम पे होती तो मैं ऐसे था, चुप, मतलब वो तो ऐसे थे जो मैंने सुना है और ऑब्ज़र्व किया है। तो वही सब देख के मैंने थोड़ा उनको यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखी, उनका थोड़ा ऑब्ज़र्व करा है उनको और एक्ट किया है। तो लेट्स सी, अब आप सब बताएंगे, ऑडियंस बताएगी कि कैसा मैंने जस्टिस किया है कि नहीं। पर्सनली सिद्धू सर ने कुछ टिप्स या कुछ एडवाइस नहीं दी? नहीं, मैं एक्चुअली मैंने बहुत एंड मोमेंट पे साइन की थी फिल्म। मैं यहाँ पे था नहीं बॉम्बे में, तो फिर मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं मिल नहीं पाया उनसे। बट मैं आई जस्ट प्रे एंड आई जस्ट विश कि मैं जल्दी मिलूँ उनसे फॉर द रिलीज। थैंक यू। किस तरह की कंट्री पसंद है यार? आई थिंक इससे पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैं आया था मुझे लुधियाना के बारे में पता था, मुझे ये भी पता था कि यूरोप में है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता था कहाँ पे है और किस तरह की वो कंट्री है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आया, आई वाज इनवाइटेड, तो एक बार आके जो प्रेजेंटेशन देखी सारी देखी, आई थिंक बहुत ही सुंदर जगह है। आई थिंक इट्स रियली प्रिटी, इट्स रियली नाइस एंड इट्स वेरी अनडिस्कवर्ड। तो वो आई थिंक एक्सप्लोर करना चाहिए और मेरा देखने के बाद तो खुद भी मन करा कि मैं जाके विजिट करके आऊँ, देख के आऊँ वहाँ पे, बिकॉज आई थिंक मिक्सचर है हर चीज़ का। आई थिंक सिंप्लिसिटी भी है वहाँ पे, आर्किटेक्चर भी एकदम डिफरेंट है, वेदर्स और सीजन्स भी एकदम अलग हैं। सो आई थिंक इट्स वन कंट्री विच शुड बी एक्सप्लोर्ड एंड लोगों को जाना चाहिए और हॉलीडे डेस्टिनेशन वहाँ पे बननी चाहिए और आई थिंक देख के तो आना चाहिए। तो मैं भी एक है कि शायद मैं जाके ऑफकोर्स देख के आऊँगा और विजिट करके आऊँगा। सर आपकी कोई फेवरेट फॉरेन कंट्री? मेरी कोई फेवरेट फॉरेन कंट्री, अभी आज कॉन्वर्सेशन में बात हो रही थी, सेशल्स करके जो एक छोटी सी क्यूट सी कंट्री, आई थिंक वो बहुत सुंदर लगती है मुझे। एंड आई एम अ वेरी बिग यूके फ़ैन, तो मुझे लंदन और स्विट्ज़रलैंड वगैरह वो वाली साइड जो है वो बहुत ही प्रिटी लगती है और सुंदर लगती है। सर लंदन की क्या चीज़ आपको बहुत पसंद है? लंदन की क्या चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है? लंदन की किंगस्टन यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे मेरे फ्यू माई फैमिली मेम्बर्स वर स्टडिंग, सो दैट वहाँ पे देर किंगस्टन दैट होल स्ट्रीट एंड वहाँ पे एक पैडिंगटन करके एरिया है, सो आई रियली एंजॉय दैट यार। और वहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क बहुत अमेजिंग है, तो मेरे को वो भी बहुत अच्छा लगता है। सर जैसे कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, वैलेंटाइन डे को लेकर क्या आपकी प्लानिंग? वैलेंटाइंस डे को लेकर अभी तक तो मेरा कोई प्लान नहीं है यार, क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इसलिए मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है। तो बट आई एम श्योर, आई होप कि
देखो क्या होता है वैलेंटाइंस डे पे। आई थिंक वैलेंटाइंस डे एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे कुछ प्लान नहीं करना चाहिए, चीज़ें खुद ब खुद होनी चाहिए। आप बर्थडे प्लान कर सकते हो, न्यू ईयर प्लान कर सकते हो, क्रिसमस प्लान कर सकते हो, होली प्लान कर सकते हो, लेकिन वैलेंटाइंस डे एक ऐसा दिन है जिस पे आप कुछ प्लान नहीं कर सकते। आपके साथ तो घटना होगी या आप बहुत खुश हो गए, तो वो बस वो उसी दिन पता चलता है कि क्या हो रहा है। बॉलीवुड में कुछ प्रोजेक्ट्स आपके? मेरा अभी आई स्टार्ट शूटिंग फॉर अ फिल्म, उसका नाम राब्ता है। वो दिनेश विजन डायरेक्ट कर रहे हैं एंड सुशांत कृति के साथ है, तो दैट आई स्टार्ट शूटिंग इन मिड मार्च। फिर उसके बाद वी गेट ऑन टू फुकरे 2 जो है वो स्टार्ट होगी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कैसी लगी आपको आज की प्रेजेंटेशन गाने की? लिथुआनिया आई थिंक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, जो मुझे अभी तक पता नहीं थी एक्चुअली। आज मैंने प्रेजेंटेशन देखी और मुझे देखने मिला कि बहुत सारी वर्जिन लोकेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बाकी कंट्रीज़ में देखने नहीं मिलेंगी शायद। तो मैं तो होप कर रहा हूँ कि डेफिनेटली बहुत जल्दी जाके वहाँ कोई किसी फिल्म की शूट करूँ और वो मौका मिले ज़रूर। कब जाने का प्लान है आपका? जी होपफुली आई मीन भगवान करे मेरे पास उतने सारे पैसे आ जाए कि मैं हॉलीडे पे चला जाऊँ, लेकिन आई वुड आइडियली वांट टू शूट आउट देयर बिकॉज इट्स गॉट अ वेरी बहुत ही शूटिंग लोकेशन फ्रेंडली जगह लग रही है मुझे। तो मैं जाके ज़रूर देखना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द प्लेस लाइक, बिकॉज मुझे ठंड बहुत पसंद है और मुझे लग रहा है कि फिर ये कंट्री और ये सिटी एक्चुअली बहुत ही ठंडी होगी, तो मुझे ठंड का मज़े लेना बहुत पसंद है। कोई फॉरेन कंट्री जो आपकी फेवरेट हो? आई थिंक मैं स्विट्ज़रलैंड गया हूँ और मुझे मतलब जब जाने के बाद लगा था कि यश चोपड़ा जी से लेकर आदि चोपड़ा जी से लेकर शाहरुख खान जी मतलब क्यों उस कंट्री से मोहब्बत कर बैठे, क्योंकि मुझे भी मोहब्बत हो गई थी जब मैंने वो कंट्री विज़िट की थी। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही पीसफुल है। सो हाँ आई थिंक। तो शादी के बाद जाने का भी प्लान है आपका? शादी के बाद पहले शादी तो हो जाने दो यार, मतलब शादी तो अब दूर की बात है, पहले मैं अभी कमा रहा हूँ यार। तो आई थिंक मैंने पंचनामा की है, आई थिंक लोगों को मैंने सिखाया कि रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो शादी दूर की बात है। वैलेंटाइन डे आ रहा है जैसे कि मूवी ने जी मूवी में हमने आपको काफ़ी अच्छा रोल प्ले करके देखा जी। वैलेंटाइन डे में किस तरह आपको लगता है कि मतलब उसके बाद भी मैं वैलेंटाइंस डे मनाऊंगा जो हमारे साथ हुआ फिल्म में? बिल्कुल नहीं। आई थिंक हमारे साथ हमने लोगों को एक तरह से खुद पे वो लेके लोगों को सीख दी है कि मत पड़ो रिलेशनशिप में। बट आई थिंक यार इट्स ईच वन टू इट्स ओन। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल डे। आई थिंक जाइए अपनी गर्लफ्रेंड्स को, अपने बॉयफ्रेंड्स को बाहर लेके जाइए। ज़रूरी नहीं है बॉयफ्रेंड सिर्फ गर्लफ्रेंड्स को बाहर लेके जाए, कई बार गर्लफ्रेंड भी लेके जा सकती है। इट्स वैलेंटाइंस, दोनों तरफा होता है, तो प्लीज़ जाइए और हैव अ ग्रेट डे। आई थिंक जस्ट पैम्पर योरसेल्फ, अपने आप पे खर्चा कीजिए, कुछ गिफ्ट्स खरीदिए एक दूसरे के लिए। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। बॉलीवुड में कुछ प्रोजेक्ट्स आपके? जी सून होपफुली आपको मिले, देखने और सुनने मिलेंगे। थैंक यू सो मच। Ready, ma'am? Ready. Sir, ma'am, you saw the presentation of Yes. Indiana. How it's like? I think it's beautiful. इसके पहले तो I had not really, I'd heard about the place for sure, but I'd also met somebody in Italy. I'd met this really enthusiastic girl, really beautiful woman, and she had told me that she was from Lithuania. I remember her. But after seeing the film, I mean, I just think it's an absolutely incredible place, one that has to be visited, whether it's for work or for pleasure. And it really seems like a place I would like to go to for having a holiday, for sure. मुझे क्या लगता है इसके बारे में कि it's a small place. It's not one of these huge big countries or big cities. It's nice, but it still packs in so much of stuff. There's beauty, there's everything that you want to see. The weather is fabulous over there as well. So it's definitely going to be on my bucket list for visiting. Your favorite country? My favorite country, well, as far as I find it easiest to go back to the UK because I lived there, but as far as holidays and stuff is concerned, it has to be the Far East, anywhere in the Far East. I love Thailand. I love the different places in Thailand. Yeah, I would choose the Far East and Southeast Asia, that side, for sure. Any special memory regarding UK or any special things about UK? Well, UK. I mean, because I lived there, I know the place inside out. But special memories. I mean, it would have to be the fact that I started acting when I was in the UK. So my very first acting job I got when I was in UK. Of course, I shot it in Sri Lanka, but the job was given to me in the UK. That's when I started acting. I started theatre
acting in theatre also in the UK. So let's just say my career started off over there. That's one of the special things about the place. Valentine's Day is nearby. Would you like to? Don't even ask me about Valentine's Day because my husband is right now had surgery and he cannot move and cannot go anywhere. So we are definitely not going anywhere for dinner. I think I will be the maid and I will be cooking and cleaning for him on Valentine's Day. Of course, I'll try not to complain. लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो चल तो नहीं सकते फिलहाल तो यानी कि मेरे लिए प्रेजेंट तो नहीं आने वाला है यानी कि आई एम द वन हु विल हैव टू बी पैम्परिंग हिम तो इस वैलेंटाइंस डे को आई थिंक आई विल बी डूइंग द स्पेंडिंग एंड आई थिंक आई विल बी डूइंग ऑल द वर्क नॉट हिम Okay, any tips you would like to suggest to today's youth people regarding love, regarding? Well, as far as I'm concerned, I'm a huge romantic. As far as love के बारे में, if you ask me, I just say, give it all, give it your heart. I mean, that's what love is all about. I've never regretted any relationship in my life. I've been married before, I've been divorced. I've never regretted it. I've never said I don't want to get married again and I hate men. Never in my life. I've never said that. I just think you should always give something or somebody a chance. Never regret any of the decisions you've taken because what you are today is because of all of those decisions. So as far as love is concerned, just go all out there, do it from your heart and you can't go wrong. Thank you. Thank you. Just for visuals.